Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads, and we are once again in front of you to discuss the extract of the next chapter, or you can say the MCQs of next chapter. Because in our previous lecture, we had a thorough discussion on the chapters of Flamingo, which are the last lesson, Low Spring, and Deep Water. And today we have picked up Vistas, commencing from chapter number 1, that is the third level, written by Jack Finney. So, what we are going to discuss today, guys, we are going to discuss चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गॉट द पॉइंट। चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं कि क्या है पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द चैप्टर। गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको चैप्टर का नाम बताना है कि चैप्टर कौन सा है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। Let's move on to question number 2. Name the author of the last lesson. That is Jack Finney. Alphonse Daudet the last lesson के हैं. Jack Finale is no one. John Updike Should Wizard Hit Mommy के हैं. तो what is the right option, guys? Jack Finney. Question number 3 is who is I in the above extract. I कौन है guys? इसके अंदर चार्ली है, लुइसा नहीं है, सैम नहीं है, क्वाइन डीलर नहीं है. And the last question is last question देख लेते हैं. They are only two. What is two in this statement, guys? Two बात की जा रही है levels की. Remember the name of the chapter, that is the third level. तो यहाँ पे levels की बात की जा रही है. There were actually two, but Charlie claimed to have seen the third level. Got the point? Let's move on to second extract. का second extract की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है second extract में. I would request all of you to have a look at the second extract as soon as possible because it's a very long chapter and we want to discuss this chapter in time. We don't want to stretch the video. तो फटाफट जल्दी से go through कर लीजिए. पहला क्वेश्चन है who is he in the above extract. फर्स्ट में देखिए पहली लाइन में जो he है उसके बारे में पूछा गया. He said I was unhappy that made my wife kind of mad. तो he कौन है guys? सैम है. सैम जो कौन है साइकाइट्रिस्ट है. Got the point, guys? Guys, do share the वीडियो को शेयर कर दें if you are liking it, अगर आपको पसंद आ रहा है तो with your friends. Let's move on to question number 2. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What does the word refuge means? एक स्टेटमेंट बोली गई थी, it's a temporary refuge from reality. तो गाइज ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? उसके फ्रेंड्स ने बोली थी. it's a temporary refuge from reality. refuge का मीनिंग पूछा गया. refuge का मीनिंग होता है सेफ प्लेस. रिस्की नहीं होता. ये गलत हो गया और फर्स्ट ये गलत हो गया. तो तीनों ऑप्शन गलत है. फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली राइट. गाइस अगर समरी और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं तो यू कैन गो एंड सर्च ऑन आवर वेबसाइट बाय द नेम ऑफ द थर्ड लेवल. यू विल गेट द समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल. व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड थिंक ऑफ हिम? चार्ली के दोस्त उसके बारे में क्या सोचते थे? दैट ही वाज ट्रू? नो. दैट ही वांटेड टू गो टू अ सेफ प्लेस? Yes. That Charlie was right in his discovery? No. They never believed in him that there existed the third level. So what is the right option? Second is the right option. Let's move on to the next one. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है. Who was Charlie's wife? चार्ली की वाइफ का नाम पूछा गया गाइस. लुइसा. लुइसा was Charlie's wife. ये उसकी वाइफ का नाम था. क्लेयर नहीं है, ये शुड विजिट इट मॉमी में. हाना एनिमी में है, द एनिमी में. None of these हो नहीं सकता. So guys these are the answers. Let's move on to the next one. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं गाइस. एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पे. इट्स अ नाइस कलेक्शन 2 blocks of 4 of practically every US issues. ये स्टैम्प्स की बात की जा रही है गाइस. व्हाट डिड चार्ली कलेक्ट? चार्ली क्या कलेक्ट करता था गाइस? फिलेटली एंड स्टैम्प्स दोनों सेम होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज सी बोथ 1 and 2. फिलेटली का मतलब भी क्या होता है गाइस? स्टैम्प्स कलेक्ट करना. गॉट इट? क्लियर? व्हाई डिड चार्ली गेट द सबवे? चार्ली ने सबवे क्यों लिया? बिकॉज इट वाज फास्टर देन द बस. द बस वॉज स्लोअर देन द सबवे. यस, दोनों एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ टर्न अराउंड किया गया है. बोथ 1 and 2. यस ये सही है. नन ऑफ दीज नहीं हो सकता. बोथ 1 and 2 ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है. तो राइट ऑप्शन इज सी बोथ 1 and 2. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट हैपेंड टू चार्ली? चार्ली को क्या हुआ था? ही गॉट लॉस्ट. वो गुम हो गया था. ही फाउंड द थर्ड लेवल. ही रीच्ड टू अ डिफरेंट लेवल. तीनों स्टेटमेंट ठीक है. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइज? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट? पूछा गया है कि आई कौन है. एक बार देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट में आई किसकी बात की गई है. आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे. तो चार्ली है. सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली गाइस. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट नहीं है, लुइसा नहीं है, ना ही सैम है. गॉट द पॉइंट? सो वी कैन टेल यू द आंसर्स इफ यू वांट. बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ऑल ऑफ दीज एंड चार्ली. बिल्कुल ठीक है गाइस. लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट नंबर 4.
I'm just an ordinary guy named Charlie. Charlie is introducing himself here, telling his age and how he reached the third level. वो इसके बारे में बताएगा सारा का सारा कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा था और उसके बाद वो थर्ड लेवल पहुंच गया. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. जस्ट हैव अ लुक एट द एक्सट्रैक्ट एज सुन एज पॉसिबल. जल्दी से इस पर नज़र मार लें एक बार सारे. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज गैबरडीन. Guys, very important question as far as your class 12th board exam is concerned to be held in the month of November. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि गैबरडीन क्या है. कोई भी वर्ड पिक कर सकता है एग्जामिनर और उस वर्ड का मीनिंग वो आपसे पूछ सकता है. इट कुड ईदर बी अ वर्ड, फ्रेज, वो फ्रेज भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अ सेंटेंस. रिमेंबर दैट एवरी स्टेटमेंट itself is a question now. Do not try to turn a blind eye from any word, phrase or sentence. तीनों का डिफरेंस पूछ लेना अपने टीचर से. ही और शी विल एलाबोरेट. गैबरडीन क्या होता है गाइस? गैबरडीन होता है फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक. ब्राउन कलर नहीं, चीज पूछी गई है, नाउन पूछा गया, काइंड ऑफ टाइट आउटफिट नहीं होती, नन ऑफ दीज नहीं होती. तो राइट ऑप्शन इज अ फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक. व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सबअर्बन. सबअर्बन का मीनिंग बताना आपको. सबअर्बन क्या होता है गाइस? अ प्लेस लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. सिटी में नहीं होता गाइस, ये आउटस्कर्ट्स पे होता है सिटी की. दैट इज कॉल्ड सबअर्बन. प्लेस याद रखने आपको. रूरल जो बैकवर्ड हो गया, अर्बन जो एडवांस्ड हो गया, इनके बीच का जो प्लेस होता है गाइस दैट इज कॉल्ड सबअर्बन. गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट डज डक इनटू मीन. डक इनटू का मीनिंग आपको बताना है. डक इनटू का मीनिंग होता है गाइस टू मूव डाउनवर्ड्स एंड एंटर. इसका भी एक आंसर था, इसका भी ए था, इसका भी ए है. वेयर डज द नरेटर गेट लॉस्ट. नरेटर कहाँ गुम होता है ये आपको बताना है गाइस. ऑन द फर्स्ट लेवल, ऑन द सेकेंड लेवल, ऑन द थर्ड लेवल. तो गाइस जो नरेटर है वो कहाँ गुम होता है? नरेटर गेट लॉस्ट ऑन द सेकेंड लेवल. गॉट द पॉइंट? कहाँ गुम होता है वो? सेकेंड लेवल पे. कई बच्चे कहेंगे सर थर्ड लेवल पे गुम होता है. नहीं, याद रखना थर्ड लेवल नेवर एग्जिस्टेड. इट एग्जिस्टेड इन द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. इट एग्जिस्टेड इन द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, नोवेयर एल्स. करेक्ट? तो सिर्फ 2 ही लेवल थे, लेकिन चार्ली के हिसाब से कितने थे? 3 थे. तो गुम हुआ था सेकेंड लेवल पे और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कहाँ चला गया था? थर्ड लेवल पे, which never existed in reality. Got the point guys? Let's move on to the next extract. Next extract की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. Extract number 5. I have been in and out of Grand Central Station. Here Charlie sharing his experience of getting lost at different levels. कि वो कब कब कहाँ कहाँ गुम हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन से बिल्डिंग से वो निकला, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर शेयर कर रहा है. तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड बम्पिंग मीन. पहला जो क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डज द वर्ड बम्पिंग मीन. इसका देख लेते हैं आंसर क्या है. सो ऑप्शन इज कोलाइड विद फोर्स. यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. बम्पिंग का मतलब कोलाइड विद फोर्स ही होता है गाइस. और भी ऑप्शंस देख लेते हैं इसके. और ऑप्शंस क्या है? कोलाइड विद एम्पैथी, कोलाइड विदाउट एनी सपोर्ट, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता. तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये गलत हो जाएंगे. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइस? कोलाइड विद फोर्स. दैट इज गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, उसके ऊपर गिवन है. What does the narrator mean by Grand Central has been an exit? इस लाइन का मीनिंग पूछ लिया गया. इस सेंटेंस का मीनिंग आपको बताना है. क्या मतलब है गाइस इसका? People get lost in it. People want to escape through Grand Central Station. Yes. People need excuses to go to Grand Central Station. ये नहीं होगा. It is the best mode to reach the underground tunnel. नहीं है. So the logically answer है that is second. People want to escape through Grand Central Station. Name the chapter. Chapter का नाम आपको बताना है. The third level. Why does only Charlie get lost at the third level? चार्ली ही क्यों गुम होता है, बाकी और कोई गुम क्यों नहीं होता? Guys, because he is practical. क्या? क्योंकि वो practical है? नहीं, practical नहीं है. Escapist है चार्ली because he loves to do adventures. नहीं, this is invalid reason. All of these हो नहीं सकता. So what is the right option guys? Because he is an escapist. ये right answer है. तो question ये भी आ सकता है, Charlie was Charlie an escapist? ट्रू और फॉल्स में आ सकता है एक क्वेश्चन. तो आपका आंसर क्या होगा? यस. तो गाइज आपका आंसर आपको क्या लिखना है? यस लिखना. नो को क्रॉस मारना, यस पे टिक लगाना. गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 6. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट. बता के फायदा भी नहीं था बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग टू बिलीव इन. ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन. ही वॉज अ प्रोफेशनल. वो कभी भी विश्वास नहीं करता दैट देयर एग्जिस्टेड थर्ड लेवल. तो चार्ली उसके बारे में बात बता रहा है. व्हाई डिड चार्ली नॉट टेल एनीथिंग टू हिज साइकेट्रिस्ट. क्यों नहीं बताया चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट को, जिसका नाम वो क्या बताता है गाइस?
इसका नाम वो बताता है कि उसका नाम सैम था. बिकॉज द साइकेट्रिस्ट वुड हैव गॉन टू गेल्सबर्ग, नो. बिकॉज दिस साइकेट्रिस्ट वुड हैव रिजेक्टेड हिज क्लेम्स, yes. Because this psychiatrist would have told everything to Louisa, no. None of these guys. So the right option is B, because this psychiatrist would have rejected his claim because he was a professional and he was a very practical man who hardly dared to believe, or you can say who hardly paid attention to such futile claims which never existed in reality. Let's move further. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड. What does pass a sol means? चार्ली ने एक स्टेटमेंट बोली थी, I did not pass a sol. That nobody was there, yes. That everybody was there, नहीं होगा. That lots of people were there, no. That there were many roaming souls, नहीं होगा guys. So the right option is that nobody was there. Choose the synonym of the word empty from the following. Hollow, vacuous, drained, सारे empty ही होते हैं guys, ये खाली होते हैं. So the right option is all of these. Which noun has been used in flight of stairs? Collective noun होता है guys, ये ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कीज के लिए बंच यूज़ किया जाता है, bunch of keys. फ्लावर्स के लिए बुके यूज़ किया जाता है गाइस, बुके ऑफ फ्लावर्स. लाइकवाइज स्टेयर्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है गाइस? फ्लाइट यूज़ किया जाता है. तो इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन. गॉट द पॉइंट. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. दीज आर द आंसर्स गिवन. एक्सट्रैक्ट सेवेंथ एक बार देख लेते हैं. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल बट आई सो द रूम वाज स्मॉलर. Now Charlie is in imagination. He has traveled from his present to past. और उसने कुछ स्ट्रेंज चीज़ें देखी है, उनके बारे में वो बात कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक बार सेवेंथ का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि व्हाट इज एन आई शेड. आई शेड क्या होता है? तो गाइस वाइजर, आई शेड क्या होता है? आई शेड का मीनिंग पूछा गया. आई शेड होता है एक वाइजर. स्पेक्टिकल्स नहीं होते, गोगल्स नहीं होते, नन ऑफ दीज नहीं होगा बिकॉज वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? वाइजर इज द राइट आंसर. गॉट द पॉइंट. What is flickering? Flickering क्या होता है? मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, फ्लक्चुएट करना. आपने देखा होगा लाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती है. तो फ्लक्चुएशन विच हैपेंड इन पास्ट, पास्ट में होती थी, अभी नहीं देखने को मिलेगी आपको. फ्लिकरिंग का मीनिंग पूछा गया. शाइन अनस्टडीली भी हो सकता है, फ्लैश इंटरमिटेंटली भी हो सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. गॉट द पॉइंट. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज चार्ली टॉकिंग अबाउट? चार्ली किसकी बात कर रहा है? अनडाउटेडली चार्ली इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल. फर्स्ट और सेकेंड लेवल की बात वो नहीं कर रहा. वेयर डिड चार्ली वांट टू गो? चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विद होम डिड चार्ली वांट टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग? सो विद हिज वाइफ. इसलिए वो क्लर्क के पास गया था. एंड ही वांटेड 2 टिकट्स. ही वांटेड 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग. सो कितनी टिकट्स चाहिए थी गाइस? 2 टिकट चाहिए थी. कहाँ की? गेल्सबर्ग की. उसने चैप्टर में बताया अभी. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. एक्सट्रैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं. देयर वाज ब्रास स्पिटून्स, उनकी बात कर रहा है कि थर्ड लेवल पे उसने क्या क्या देखा था. तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. व्हाट इज स्पिटून? स्पिटून क्या होता है गाइस? रिसेप्टेकल फॉर स्पिट, रिसेप्टेकल फॉर सलाइवा, रिसेप्टेकल फॉर स्पिटल. तीनों ऑप्शन सही हैं गाइस. स्पिट, सलाइवा, स्पिटल तीनों एक ही होता है. व्हाट आर टाइनी लेपल्स? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टाइनी लेपल्स क्या होते हैं गाइस? टाइनी लेपल्स आपको बताने हैं. टाइनी लेपल्स क्या होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आइए, आंसर कीजिए कि टाइनी लेपल्स क्या है. फटाफट जल्दी से बताइए फटाफट गाइस, टाइनी लेपल्स क्या होते हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू. टाइनी लेपल्स के बारे में कम टू द कमेंट बॉक्स एंड बताइए. टाइनी लेपल्स होते हैं गाइस लैप्स एट द फ्रंट ऑफ कोट. ये आपको कोट के फ्रंट में मिलते हैं. बैक पे नहीं होते, बॉटम पे नहीं होते, टॉप पे नहीं होते. फ्रंट पे छोटे छोटे से लेपल्स होते हैं. उनको क्या बोलते हैं गाइस? टाइनी लेपल्स. टाइनी का मीनिंग भी पूछा जा सकता है. टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा. चार्ली इन हिज ड्रीम ट्रेवल टू. चार्ली ने कहाँ ट्रेवल किया? फ्यूचर में चार्ली नहीं जाता बिकॉज ही वॉज एन एस्केपिस्ट. वो बचना चाहता था. ही वॉन्टेड टू ट्रेवल टू पास्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम पास्ट वॉज सेफर. मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर. तो वो पास्ट में जाना चाहता था. प्रेजेंट नहीं था, फ्यूचर नहीं था, नन ऑफ दीज नहीं आएगा. व्हाट इज द राइट ऑप्शन गाइस? पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं डी कौन सा क्वेश्चन है. ड्रेस्ड लाइक 1890 something. Which literary device has been used? Like or as? Guys, जहाँ देखने को मिल जाए you can blindly answer it with simile. आप किससे आंसर करेंगे उसका? Simile. Antithesis नहीं है, alliteration नहीं है, personify भी नहीं किया गया है. So the right option is simile. You can match the answers as well. If you want, you can go to www.brainylads.in. brainylads.in
इन, अब brainylabs.in पे जाते हैं, वहाँ पर आपको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे एक्सट्रैक्ट्स का। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ब्रेनीलैब्स में, विच इज़ आवर वेबसाइट। Extract number 9. A woman walked in through the train gate. She wore a dress. So Charlie is elaborating his experience at the third level. उसके बारे में वो बात कर रहा है, बहुत सारी बातें करेगा वो। that eggs were 13 cent a dozen, न्यूज़पेपर की भी बात करेगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है गाइज, ये आपको बताना है। लोकोमोटिव का मीनिंग बताइए फटाफट गाइज। लोकोमोटिव क्या होता है? क्या लोकोमोटिव इंजन होता है? यस। लोको शॉर्ट फॉर्म होती है लोकोमोटिव की। रेल रोड को भी क्या बोलते हैं गाइज? लोकोमोटिव बोलते हैं। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय स्टैक ऑफ पेपर्स? गाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो स्टैक ऑफ पेपर उसने बोला, इसका मतलब क्या है? पाइल ऑफ पेपर्स। यस, वेस्टेज नहीं थे, स्टैम्प पेपर नहीं थे। पाइल इज इक्वल टू स्टैक, ढेर को बोलते हैं गाइज, पाइल और स्टैक बोल सकते हैं। व्हाट वाज द वर्ल्ड? द वर्ल्ड क्या था गाइज, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड हैड नॉट बीन पब्लिश्ड, इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। तो ये न्यूज़पेपर था गाइज एक। द वर्ल्ड क्या था? ये एक न्यूज़पेपर था। राइट ऑप्शन इज न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। वेयर डिड चार्ली ट्रेवल टू? वेयर हैड चार्ली ट्रेवल टू? पास्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, इसको अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट 10 पे। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी। याद रखना, ही वांटेड टू बाय 2 टिकट्स, वन फॉर हिज वाइफ, वन फॉर हिमसेल्फ। ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, इसलिए वो टिकट कलेक्टर के पास, यानी जो क्लर्क वहाँ पे बैठा था उसके पास गया था। Why did Charlie want to visit Galesburg? It was safer, yes. It was cheaper, it was secured. तीनों ऑप्शन ठीक है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी को भी देख लेते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ? इसका मतलब क्या है? ही वॉज इन फ्यूचर, क्या वो फ्यूचर में था? नहीं। ही वॉज इन पास्ट, ही वॉज इन प्रेजेंट, ही वॉज बॉर्न बिफोर वॉर? नो गाइस, ही वॉज इन पास्ट। आपका आंसर ये होगा। व्हाट आर फायर फ्लाइज? फायर फ्लाइज क्या होती हैं गाइस, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताइए। सो गाइस फायर फ्लाइज क्या होती हैं? फायर फ्लाइज होती हैं आपकी फायर बीटल्स। वाटर बीटल्स नहीं होती, अर्थ फॉर्म्स नहीं होते, नन ऑफ दीज नहीं होगा। What does this extract show about the people of Galesburg? They were respectful, they were arrogant, they were modest, they cared for money only। ये आपको बताना है इसका आंसर, फटाफट जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। So guys, they were respectful, yes, people of Galesburg were respectful, arrogant नहीं थे, modest भी नहीं थे, they cared for money only नहीं होगा। So what is the right option? They were respectful। Let's move further, आगे बढ़ते हैं guys और नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट 11th की। I wanted 2 tickets for that, the clerk figured the fare। Why did the clerk stare at Charlie? क्लर्क चार्ली को घूर घूर कर क्यों देख रहा था? Because he was offering fake currency, yes। He was offering different currency than he needed, yes, ये भी हो सकता है। He was offering old currency to him, ये भी हो सकता है। फेक नहीं दे रहे थे, he was offering different currency than he needed, ये भी हो सकता है। He was asking tickets for free, ये नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर क्या है? आंसर है गाइस इसका, ही वॉज ऑफरिंग अ डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट करेंसी दे रहे थे चार्ली। गॉट द पॉइंट? फेक नहीं थी गाइस, वो डिफरेंट थी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंट करेंसी। दैट इज नॉट मनी मिस्टर, व्हाट डज द स्पीकर मीन? उसका क्या मतलब था? मनी इज न्यू, मनी इज ओल्ड, उसको फेक लग रही थी गाइस, इसलिए उसने इसको क्या बोला था? दैट इज नॉट मनी। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस। Why did Charlie not want to go to jail? चार्ली क्यों नहीं जाना चाहता था? It was costly or no? It was better than past? No, it was worse in the past. It was better in future. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, it was worse in the past। डी पार्ट पे आते हैं। How was old money different from new one? जो पुरानी मनी थी वो नई से कैसे डिफरेंट थी? It was bigger in size, yes। Guys, you must have seen, अगर आपने भी देखा हो 500 का नोट अगर आप देखेंगे तो पुराने वाला जो 500 का नोट था, it was bigger in size। पुराने वाला 100 का नोट भी आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे उसको न्यू नोट से, तो नए वाला जो नोट है वो स्मॉलर होगा और पुराने वाला क्या होगा? बिगर होगा। इट वाज बिगर इन साइज, ओल्ड मनी की बात की गई है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइज और क्वेश्चंस देखते हैं।
extract 12th, and that was that I left the same way I came. Charlie is talking about his departure from the third level because he did not want to go to jail because the clerk was after him. The clerk wanted him to be arrested because he thought he was cheating him, giving him fake currency, पुरानी करेंसी देकर उसको वो चीट करने की कोशिश कर रहा है. तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, चार्ली ने एक्सचेंज कराई थी मनी. एक्सट्रैक्ट को पढ़ लीजिए एक बार. Why did Charlie get his new currency exchange? Because he wanted to buy 2 tickets for Galesburg. ये ऑप्शन ठीक है. He wanted to enjoy more. नहीं, अभी वो पहुंचा भी नहीं था. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. So what is the right option? B option guys. Guys do share it. अगर शेयर करते चलें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो. Why was the psychiatrist worried? Psychiatrist क्यों परेशान था? Because Charlie had borne loss. Charlie had played foolish. Because Charlie had got 200 for $300. 200 in exchange of 300. So तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है guys. All of these is the right option. So इसका हो गया all of these और इसका हो गया he wanted to buy 2 tickets for Galesburg. What does the speaker mean by eggs were 13 cents a dozen? क्या मतलब है इस लाइन का? As I told you, the examiner can ask you a word, phrase or a sentence. इसका मीनिंग आपको बताना. It was cheaper to be in past. Yes. It was costlier नहीं था. It was modest नहीं था. So the first option is right option. All of these नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन सही है. Got the point? तीनों गलत नहीं है, 2 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है, तो all of these भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ मच प्रीमियम हैड चार्ली हैड टू पे? प्रीमियम कितना पे करना पड़ा था? ऑलमोस्ट $100 उसको पे करने पड़े थे. ही हैड गॉट अराउंड $200 फॉर $300 ऑफ न्यू करेंसी. उसने $300 जो उसके एटीएम में थे, उसके बैंक में थे, वो विड्रॉ किए थे और उसके बदले में 200 या लेस देन 200 उसको मिले थे. चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में. एक्सट्रैक्ट 13 देखते हैं गाइस. 13 एक्सट्रैक्ट में क्या है? I have never found the corridor that leads to the. Charlie is talking about his never finding the third level again. उसके बारे में वो बात कर रहा है. Why could Charlie not find the corridor again? Because it did not exist. Yes, it was under construction. गलत है. It was demolished. गलत है. It disappeared in reality. गलत है. It did not exist. वो कभी exist ही नहीं करता था. What made Louisa worried? Louisa क्यों परेशान थी? Charlie's invention of third level. Yes, the same thing made her mad. Charlie's claim of being on third level, ये भी ठीक हो सकता है. Charlie's proof of finding another level. Yes. So the right option is all of these. What does look for mean? एक phrasal verb है look for. इसका मतलब क्या होता है? सर्च करना होता है. There is no need to look at the other options. It's quite simple question. Next question है what are we? Sorry. Who are we in the first line? We कौन है एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट लाइन के अंदर बैक जाके देख लेते हैं. वी नहीं है इसके अंदर गाइस. वी पूछा गया है कौन? वी आर बोथ लुकिंग. वी, हाँ, दोनों की बात की गई है. चार्ली और लुइसा की बात की गई है गाइस. चार्ली एंड लुइसा. चार्ली एंड सैम नहीं है. सैम एंड लुइसा नहीं है. चार्ली एंड हिज फ्रेंड्स नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली एंड लुइसा. गॉट द पॉइंट? तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज हो जाएगा. इसका क्या था बच्चे? सर्च था. चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में. एक्सट्रैक्ट 14th. माय फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड. वो कहता है कि मेरा जो साइकेट्रिस्ट था सैम था वो डिसअपीयर हो गया. नोबडी नो वेयर ही वाज, बट वो कहता है मुझे पता है कि दैट ही वाज इन गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग में उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था. उसने कहा था कि उसको गेल्सबर्ग पसंद है. यू कैन रीड द एक्सट्रैक्ट एज वेल. वेयर हैज सैम गोन अकॉर्डिंग टू चार्ली? तो द राइट ऑप्शन इज गेल्सबर्ग. दूसरे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है. How old was Charlie? Charlie was 31 year old. बीच में हाइफन हो आएगा guys इसके 31 year old में. How was Charlie associated with Galesburg? Spent his whole life there? No. Spent his childhood there? Yes. उसने अपने बचपन का कुछ टाइम वहाँ बताया था. He was known to the atmosphere of Galesburg. उसको पता था Galesburg was safer. It was a suburban kind of place जो safer भी था. People were very friendly. People were very sympathetic over there. सपोर्टिव लोग थे वहाँ के. ये उसको पता था, इसलिए वो कहाँ जाना चाहता था? मॉडर्न वर्ल्ड से जो कि फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर है, कहाँ पर? गेल्सबर्ग जाना चाहता था. हाउ डिड सैम रियली ट्रेवल टू गेल्सबर्ग? इन रियलिटी नो, सैम गया ही नहीं. इन इमेजिनेशन भी नहीं गया. इन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, यस, ये हो सकता है गाइस. नन ऑफ दीज नहीं होगा. सैम ने ट्रेवल ही नहीं किया था गेल्सबर्ग. वो किसकी इमेजिनेशन में वहाँ गया था? चार्ली की इमेजिनेशन. गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस. 15th पे.
दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, तो फर्स्ट डे कवर आपको पता होना चाहिए, एक ब्लैंक एनवेलप होता है गाइस, उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, स्टैम्प के ऊपर डेट कौन प्रूव कर देता है, पोस्ट मास्टर प्रूव कर देता है, एनवेलप पे उस स्टैम्प को लगाया जाता है एंड इट इज़ मेल टू वन हु वांट्स टू कलेक्ट दैट स्टैम्प, अपने आप को ही मेल कर ली जाती है। तो फर्स्ट डे कवर आप पढ़ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द थर्ड लेवल इज कंसर्न। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? एनवेलप विद अ ब्लैंक पेपर, यस ब्लैंक पेपर से होता है गाइस, तो तीनों ऑप्शन गलत है, ब्लैंक पेपर वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। Who had mailed that who had made that first day cover to Charlie's grandfather according to the speaker, उसके हिसाब से सैम ने मेल किया था। तो दोनों ऑप्शन, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। Who proved the date on the first day cover? कौन प्रूव करता था गाइस? पोस्ट मास्टर प्रूव करता था। Where is the first day cover mailed to? फर्स्ट डे कवर किसको मेल किया जाता है? टू वन सेल्फ, खुद को मेल किया जाता है, बाकियों को नहीं किया जाता गाइस। क्या पर्पज होता है फर्स्ट डे कवर को खुद को मेल करने का? टू कलेक्ट द स्टैम्प्स। और ये कौन करते हैं गाइस? स्टैम्प्स, इट इज डन बाय स्टैम्प कलेक्टर्स। और स्टैम्प कलेक्शन को फिलेटली भी बोलते हैं गाइस, फिलेटली, याद रखना है आपको ये वर्ड, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में दे दिया जाए, फिलेटली इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैम्प कलेक्शन। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट 16 पे। चार्ली आई गोट टू विशिंग यू दैट यू वर राइट, ये वो लेटर है जो चार्ली के हिसाब से किसने भेजा था? सैम ने भेजा था। तो यहाँ पर आए कौन हुआ? सैम हो गया गाइस। हाउ वाज गेल्सबर्ग डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज? इट वाज पीसफुल, क्योटिक नहीं था, डिस्टर्बिंग नहीं था, तो पीसफुल लिखना है आपको गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर लैमोनेड? सैम ने कहा था कि मुझे लैमोनेड के लिए इनवाइट किया गया है, चार्ली को लेटर में बताया था। और देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है। व्हाट डज द स्पीकर वांट चार्ली एंड लुइसा टू डू? स्पीकर क्या चाहता था? टू एब्डिकेट देयर टाउन फॉर एवर, टू कंटिन्यू लुकिंग फॉर थर्ड लेवल, यस। लुक आफ्टर नहीं है गाइस, लुक आफ्टर का मतलब अलग होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। वो नहीं चाहता था कि वो थर्ड लेवल की केयर करें, बिकॉज इट नेवर एग्जिस्टेड। वो चाहता था वो थर्ड लेवल को ढूंढते रहे। कौन चाहता था? सैम चाहता था। किसके हिसाब से गाइस? अकॉर्डिंग टू चार्ली, इट वॉज अ पार्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, ये आपको याद रखना है। सैम कोई गेल्सबर्ग नहीं किया था। Let's move on to 17th extract. At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800. उसको पता चला था कि सैम ने कितने $100 लिए वहाँ से, $800, और ओल्ड करेंसी ली है। इसका मतलब ही वॉज डैम श्योर कि सैम कहाँ चला गया? गेल्सबर्ग, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। हु इज ए साइकेट्रिस्ट? साइकेट्रिस्ट कौन होता है? वन हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स, यस ये ऑप्शन ठीक है गाइस। साइकेट्रिस्ट का मीनिंग पूछा गया, आप बताइए मुझे फटाफट साइकेट्रिस्ट क्या होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है द थर्ड लेवल। साइकेट्रिस्ट का मीनिंग बताइए जल्दी से, क्विकली। सो गाइस व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ हु इज अ साइकेट्रिस्ट? साइकेट्रिस्ट कौन होता है गाइस? वन हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स, मेडिसिन में डील नहीं करता, साइकेट्रिक प्रैक्टिस नहीं करता, वो मेंटल डिसऑर्डर्स को जो ठीक करता है, दैट इज कॉल्ड साइकेट्रिस्ट। व्हाट मेड सैम कन्वर्ट हिज न्यू स्टाइल ऑफ करेंसी इनटू ओल्डर वंस? बिकॉज ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग, बिकॉज ही वांटेड टू अर्न प्रीमियम, नो, because he wanted to start the business of hay and grey, ये भी ठीक है guys। हे नहीं, ये तो चार्ली की इमेजिनेशन के था हिसाब से था, because he wanted to go to गेल्सबर्ग। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, seems डाउटफुल लग रहा है ये, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा बी का। चलो थर्ड पे बढ़ते हैं। What business did Sam prefer to do according to Charlie? hay, grain और wheat का बिजनेस वो करना चाहता था। so all the options are right, all of these। find out the antonym of the word dubiously। dubiously का मीनिंग आपको बताना है क्या है। श्योरली, डेफिनेटली, सारे होंगे गाइज ये। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। और अनक्लियरली, अनक्लियरली, ऑल ऑफ दीज। अनक्लियरली नहीं होगा गाइज, श्योरली। ड्यूबियसली का एक मिनट एंटोनिम पूछा है गाइज, देख लेते हैं बैक पेज पे जाके। क्वेश्चन क्या था? ड्यूबियसली का एंटोनिम पूछा है, ऑब्वियस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? श्योरली हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्लियरली नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। तो गाइज ये है बिकॉज यू वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग। और देख लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट्स नहीं है गाइज। देयर वर 17 एक्सट्रैक्ट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 17 गाइज। इफ़ यू लाइक दिस पोस्ट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। और भी हमारे वीडियोस हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं, हमने अपलोड किए हैं एक्सट्रैक्ट्स द थर्ड लेवल के, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा द लास्ट लेसन लो स्प्रिंग,
और डीप वाटर हम अपलोड कर चुके हैं, पूरा राइटिंग सेक्शन MCQs का हमने अपलोड कर दिया है. If you really like this video, do not forget to share it with your friends. Do subscribe to our channel as well by pressing the bell icon in order to get timely and regular updates ताकि आपको मिल सके. So guys, that was all about today's session. Thank you for watching it. Have a nice day.